Right. I know the moment that you're waiting for since morning is gonna be here very, very soon. And why we are witnessing this mega event being possible is because of our sponsors and co hosts. And I would like to thank them. So, co host Steam House, title sponsor Ayani Diamond, platinum sponsor One Space, Rap to Earn, Spread, Build It India, Zebra Learn, Avime, Herbals. Gold sponsor Regrip, Curate, Decimal, Council Wise, MVT, One Oneza, Lexicon Legal, Touch Films, The Laundry House, Indulge Concierge, Sandcup Design, Curling Professional, Khushi, the Juno Moneta Tower, My Value Trip, Print Bricks, Blink Digital, Wadhwani Foundation, Grip Invest, 360i, Arham Store, and Tech Cloud. Thank you so much for your valuable support for making 21 by 72 Season 3 possible. And now, ladies and gentlemen, who are we gonna welcome? Can we have a loud cheer? Who are we gonna welcome? Can we have a loud name cheer of Raj Shamani? At the count of three. 1, 2, 3. No, we have to sound like a very good chorus. So we have to correctly shout together. Say Raj Shamani. सपने जो अधूरे हैं उनके लिए हमें राहें जिन्हें ना मिले. Excuse us. Please welcome the young and dynamic face and inspiring face of India who is changing the entire ecosystem of podcasting and inspiring and sharing different information. We welcome you in 21 by 72. The India's largest summit has Raj Shamani. दुनिया के नक्शे पर हम 21 बार दर्शा जाएंगे, छा जाएंगे. 21 बार हम छा जाएंगे. दुनिया के नक्शे पर हम 21 बार हम छा जाएंगे. Kem Cho Surat! Firstly, I would like to welcome Mr. Raj Shamani, all the way from Bombay. First time ever in Surat, presenting to all of you. Welcome from all of us. Thank you so much, guys. Thank you so much. Raj. Game show का reply क्या था मजा मार. So Raj, you've been an inspiration for millions and millions of people across India. From an influencer, creator, to a businessman, to a podcaster. You wear so many multiple hats across. What has your journey been like? If you can share some snippets from your journey, and how do you manage so many multiple hats across? Wow, बहुत difficult question पूछ लिया. Okay, what do you want to know specifically? How do I manage, or what do I do? Like, you need to be a little specific. How do you manage all of your roles Okay, so wow. perfectly? I think जितने भी काम करता हूँ उन सब में मैं काम तो एक ही करता हूँ. बाकी मेरे आसपास जो मेरी टीम है वो अलग अलग काम करती है. सो आई थिंक द ओनली थिंग दैट आई डू, और मे बी जिसमें मैं बहुत लकी हूँ या मुझे पता नहीं कैसे चमकता है, कि मेरे आसपास बहुत अच्छे लोग आ जाते हैं मेरे साथ, एंड दे डू द वर्क. मैं सिर्फ दिन भर ऐसे इवेंट्स में जाता हूँ, घूमता हूँ, मस्ती करता हूँ. No, for real, I think what you see, whether it's podcast, whether it's startup, whether it's the consulting gigs that we do, whether the investments that we all have done, इन सब में मेरा शायद decision making या मेरा contribution सिर्फ 1% रहता है. 99% is genuinely the team. There are right people with me, जो they are more dedicated to make me look good than I am. So that's why it works out. Amazing. So Raj, one thing that we have noticed all across is your contents are always with variety. It's health, religion, politics. So how many different perspectives you come up with or you get, you still are so very good in it. How do you balance, because it is very easy for someone to pick a line and say that boss inne kya bol diya, right? But how do you manage that different perspective
And how do you keep that balance? Because as an entrepreneur, balance is something which is very important in that journey. So I'll tell you one good perspective. अगर मेरे पॉडकास्ट देखोगे, फर्स्ट इज करेक्शन, मैं रिलीजन पे नहीं बनाता. मैंने नहीं बनाया कभी. बट इफ यू लुक एट माई पॉडकास्ट, देयर आर ओनली 3 स्पेसिफिक विंडोज एंड कैटेगरीज दैट आई टॉक अबाउट. हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स. इन्हीं तीनों के आसपास होता है. कभी कभार हम कंट्री रियलिटी पे भी करते हैं, दैट आई थिंक वेल्थ के अंदर ही आता है कि अगर देश की रियलिटी जानोगे, देश में क्या चल रहा है जानोगे, तो तुम पैसे कमा पाओगे. सो हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स, ये तीनों मेरे लिए पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं मेरी जर्नी में फिगर आउट कर रहा हूँ कि मैं कैसे बेटर अपनी हेल्थ करूँ, कैसे मैं अपनी बेटर वेल्थ करूँ, कैसे मैं अपनी रिलेशनशिप बेटर करूँ. तो मैं बहुत सेल्फिश हूँ. सो क्योंकि मुझे बहुत बेटर बनना है, मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बेटर बनना होगा, तो मैं वर्ल्ड के, इंडिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और अच्छे लोगों को लेके आता हूँ एंड उनसे समझने की कोशिश करता हूँ जो मेरे पर्सनली क्वेश्चंस हैं. दैट्स ऑल आई डू. सो ऑल माई पॉडकास्ट, आई एम नॉट ट्राइंग टू बैलेंस और एक्चुअली लुक इनटू डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट कैटेगरीज. मैं बहुत सिंपल हूँ कि मेरे को बेटर बनना है, तो मैं बेटर लोग लेके आ रहा हूँ. नाउ बहुत बार ऐसा होता है कि एक टाइम बाद ना क्वेश्चंस नहीं मिलते, पता नहीं होता है क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, तो उधर ऑडियंस हेल्प कर देती है. सो ऑल द फीडबैक दैट वी टेक, एनीवन हु हैज सीन माय पॉडकास्ट, एनीवन हु सीन माय पॉडकास्ट, ओके, तो अगर किसी ने एंड तक देखा होगा, तो एंड में मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि प्लीज़ हमें कमेंट्स में फीडबैक दो, क्योंकि आपके फीडबैक से हम बेटर होंगे. माई होल टीम, देयर इज 1 hour डेडिकेटेड डेली जहाँ पे हम सिर्फ कमेंट्स पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग मी. और उस कमेंट्स में जो जो फीडबैक मिलता है वो हम हमारे व्हाइट बोर्ड पे लिख देते हैं और लिखते हैं कि अच्छा अगले वाले पॉडकास्ट में ये बेटर करना है, इधर हमारी रिसर्च बेकार थी, इधर प्रॉबेबली हमने क्वेश्चन गलत पूछा, यहाँ हम डर गए, यहाँ हमने और अच्छा क्वेश्चन पूछना था किससे नहीं पूछा. वो सबसे फिर देन वी गेट बेटर एंड बेटर एंड बेटर. सो इट्स जस्ट दैट. नाउ कमिंग टू कैन वी बैलेंस हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप टुगेदर. आई थिंक तीनों ना बैलेंस हो सकती है, बट तीनों मैक्सिमाइज नहीं हो सकती. दिस इज़ वॉट आई नो टिल नाउ. मे बी फ्यूचर में कुछ और होगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी 2 चीज़ ऑप्टिमाइज कर लो और एक चीज़ मैक्सिमाइज कर लो, तीनों मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगी. सो यू नीड टू चूज विच वन यू डू वांट टू मैक्सिमाइज. किसी को वेल्थ मैक्सिमाइज करनी होगी तो उसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ऑन हेल्थ एंड रिलेशनशिप. किसी को रिलेशनशिप मैक्सिमाइज करनी पड़ेगी तो उसे थोड़ा करना पड़ेगा कि मैं हेल्थ और वेल्थ पे कर लूँ. सो इट डिपेंड्स ऑन यू. तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू क्या है. यू कैन मैक्सिमाइज वंस एंड बाकी यू कैन जस्ट कीप ऑप्टिमाइजिंग. दैट्स वॉट आई हैव लर्न टिल नाउ. But I'm trying to be at a level where मैं तीनों maximize कर पाऊँ. Let's see if I ever be able to go there or no. I only want to add, I think you're managing it so well from US to, reaching, Mumbai. And then actually he's not very well. इनको लग गई थी and he's still here. So he's anyway maximizing, everything that he can do it. So thank you so much again for coming to Surat. So over to Rachit for the next question. So Raj, you not only were the youngest Indian to attend the recently held Cannes Festival, Cannes Film Festival, but also you had the privilege of introducing the Honorable PM Narendra Modi on the National Creators Day. What was the feeling like, if you can, and just describe how it felt like? I'll tell you a very honest feeling when I was close to our PM. Okay, मैं एक insight देता हूँ जो शायद किसी को पता नहीं होगा, मैंने कहीं बोला भी नहीं है. तो वहाँ पे क्या होता है, पहले तुम्हारा ना एक प्रॉक्सिमिटी पास बनता है. सो प्रॉक्सिमिटी पास क्या होता है, एक वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स तुम्हारे बैकग्राउंड और तुम्हारे आधार कार्ड लेके तुम्हारे घर पे एड्रेस जाके चेक करते हैं कि क्या तुम इस लायक हो कि पीएम के आसपास भटक सकते हो. सो पहले वो चेकिंग होती है, फिर चेकिंग करके तुम्हें पास देते हैं. फिर पास देने के बाद ना तुम्हें बताया जाता है एग्जैक्टली कि ऐसे इतना मूव करोगे और फिर ऐसा कैसे वापस आओगे. अगर तुमने मुड़ा भी तो तुम्हें टेक डाउन कर दिया जाएगा. अब उस सिचुएशन में मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि टेक डाउन का मतलब क्या होता है. सो ऐसे तुम्हारे आसपास 20 बॉडीगार्ड्स होते हैं और कुछ बॉडीगार्ड्स होते हैं जो ऑडियंस में कैमोफ्लेज होते हैं, तुम्हें पता भी नहीं होता है वो है भी कि नहीं है. एंड वो एसपीजी होते हैं. एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो जिसकी सिक्योरिटी इवन इफ यू आर मुकेश अंबानी इन दिस कंट्री यू कांट बाय. That security is only for PM. Like Mukesh Ambani will also get NSG. They can't get SP. तो एक special breed of, हाँ मतलब just the politicians, that's what I'm saying. So एक special breed of people जिन्हें train किया जाता है कि वो उनके bodyguards हैं, वो तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हें बताते हैं कि ऐसा करना और ऐसा चलना.
अगर पीएम ने तुमसे हाथ मिलाया तो ही हाथ मिलाना, नहीं तो तुम आगे बढ़ के हाथ भी नहीं दे सकते। अब उस टाइम पे ऐसे एनवायरनमेंट में और तुम्हारे ऊपर एक शैडो, एक बॉडीगार्ड लगा रहता है कि तुम इस सब सुनने के बाद कभी तुम्हारे दिमाग में कुछ बेवकूफ़ी वाला थॉट आए तो ये आदमी जस्ट तुम्हारे पीछे ही खड़ा है। इस प्रेशर में वो तुम्हें भेजते हैं और तुम्हारा टाइम भी डेडिकेटेड होता है कि इतने मिनट में वहां पे एक इंसान खड़ा होगा, जैसे ही वो खड़ा होगा दैट इज योर क्यू कि तुम्हें पीछे मुड़ के वापस आना है। इस प्रेशर में वो तुम्हें बोलते हैं अब इंट्रोड्यूस कर दो पीएम के सामने। अब मुझे ये नहीं पता था उस पूरे इसमें कि मैं पीएम को इम्प्रेस करूं, कि मैं मेरी ऑडियंस को इम्प्रेस करूं, कि मैं इंट्रो दूं जो मैं लिख के आया हूं, कि मैं ये सोचूं कि मेरा टाइम खत्म हो गया नहीं तो मुझे टेक डाउन कर दिया जाएगा। सो दैट वाज माई एक्सपीरियंस। पूरे एक्सपीरियंस में बस यही लग रहा था कि बस मैं कुछ ऐसा ना कर दूं कि मैं टेक डाउन हो जाए क्योंकि जितना वायरल मेरा वो इंट्रो हुआ है उससे ज़्यादा वायरल होता है मेरा टेक डाउन होना। सो दैट वाज ऑनेस्ट फीलिंग। बाकी घर आके फिर लगा कि अच्छा यार बड़ा काम करके आए। वहाँ पे सिर्फ डर लग रहा था। इट इज़ प्रीटी इंटरेस्टिंग। आई थिंक कान में एक चीज़ होती है, तुम कॉन्स्टेंटली सिर्फ ये पूछ रहे होते हो खुद से कि मैं क्या इधर बिलोंग करता हूँ क्या, मतलब ये क्या जगह है मेरे लिए। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, आई गिव यू वहाँ का रियलिटी। रेड कार्पेट से पहले सब लाइन में एक एक करके सबकी कार्स आती है, तुम कार से उतरते हो और कार से उतर के तुम्हें लाइन में खड़ा करा जाता है। फिर बेस्ड ऑन योर सेलिब्रिटी स्टेटस, अगर तुम बिल्कुल नॉर्मल इंसान हो तुम ऐसे ही भेज देते हैं, तुम थोड़े से सेलिब्रिटी हो तो तुम्हें 30 सेकंड रोकते हैं सब लोगों को, फिर तुम्हें भेजते हैं, फिर 30 सेकंड सब रुके होते हैं, फिर दूसरा जाता है, फिर अगर तुम और बड़े सेलिब्रिटी हो तो 1 मिनट तुम्हें टाइम मिलता है। लेकिन उस 30 मिनट्स या 1 मिनट के पहले जो लाइन लगी रहती है ना, वहाँ पे सब रहते हैं। तो वहाँ पे क्रिस हेम्सवर्थ भी ऐसे खड़ा है जो थॉर है, सेलेना गोमेज भी खड़ी है, तुम भी खड़े हो। अब इन सब के बीच में तुम ऐसा लगता है कि मैं जाऊँगा इसके बाद। ये मतलब, और कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनिंग कि इतने सारे लोग हैं मेरा फोटो भी खींचेंगे क्या, मतलब मेरे से बात क्यों करेंगे, मैं इधर क्यों आया हूँ, इज इट, क्या ये मूवीज़ के लिए जगह है, क्या ये फेस्टिवल कल्चर की जगह, क्या ये सेलिब्रिटी की जगह, क्या ये कपड़े दिखाने की जगह। यू डोंट नो एनीथिंग, यू कॉन्स्टेंटली जस्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ वेदर यू बिलोंग हियर और नो। और मैं तो इंदौर से हूँ तो मेरे अंदर स्मॉल टाउन भर भर के भरा हुआ है, तो मुझे फुल टाइम ऐसा लग रहा था कि अपने लिए तो नहीं है भाई, औकात के बाहर की जगह है। आई डोंट नो वेयर एम आई, व्हाट एम आई डूइंग, फुल टाइम क्वेश्चन करते हो और एकदम से आपका स्लॉट आता है और फिर आपको वॉक करने के बोलते हैं और फिर आपको उधर बोलते हैं कि ठीक है पोस्ट कर देना, एंड आपको नहीं पता होता आप कहाँ पोस्ट करो, क्योंकि आपने अगर गलत फोटोग्राफर के सामने पोस्ट कर दिया, उसने फोटो नहीं खींचा। क्योंकि अब तुम सेलेना गोमेज तो हो नहीं कि हर फोटोग्राफर तुम में इंटरेस्टेड होगा। सो बेस्ड ऑन योर आउटफिट देयर विल बी फ्यू पीपल विल बी इंटरेस्टेड। सो यू जस्ट थिंकिंग दीज थिंग्स और ये जाता है। बट एक बार जब वॉक हो जाती है ना, देन तुम अंदर जाते हो और तुम्हें पता चलता है कि यार इस थिएटर में शायद सिर्फ पूरी दुनिया से हज़ारों लोगों में से 100 लोगों को मौका मिला है इधर आने का, एंड दैट फीलिंग इज़ वेरी गुड। तुम्हें लगता है कि यार मे बी आई डोंट बिलोंग हियर बट डेफिनेटली आई डिजर्व टू बी हियर। बहुत मज़ा आता है इसके बाद। सो यू नो, एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है, एंड आई थिंक आपकी जर्नी बहुत डिफिकल्ट रही है बिकॉज यू स्टार्टेड विद 10,000 रुपीज़, देन यू बिल्ड और सपोर्टेड योर फैमिली, देन आपने एक ट्रेडिंग कंपनी को 200 करोड़ की कंपनी बनाई, नाउ यू आर डूइंग आई थिंक इंडिया तो क्या ग्लोबल लेवल पे यू नो पॉडकास्टिंग. सो हाउ इज दिस जर्नी बीन एंड हाउ डिफिकल्ट वॉज द जर्नी? बिकॉज एवरी वन इज एन एंटरप्रेन्योर. पेशेंस कहीं तो जाता है ना, कितनी गलत चीज़ें भी होती होंगी, हमको फेलियर्स भी मिलते होंगे. सो व्हाट हैज़ बीन दैट जर्नी एंड व्हाट इज द मैसेज यू विल गुड? सी आई थिंक मैं अभी भी मेरी जर्नी में बहुत ही न्यू हूँ या मैं बहुत छोटा ही हूँ, जिस मैं ऐसे मैसेज तो नहीं दे सकता, बट आई कैन टेल यू व्हाट आई हैव लर्नड. आई टेल यू द सिंपल थिंग आई हैव लर्न कि जिस इंसान के पास पैसे नहीं होते ना और जिस इंसान के पास पैसे होते हैं वो दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं. जिसके पास पैसे होते हैं उसके पास हज़ारों प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन जिसके पास नहीं होते हैं उसकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है, पैसा. तो पहले जब तक तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अब पैसा कितना होना चाहिए क्या होना चाहिए सब किसी का अपना अपना है, बट जब तक तुम्हें लग रहा है ना कि पैसा नहीं है
तब तक कुछ और मत सोचो, सिर्फ पैसे कमाओ. लाइक एवरीबडी विल टेल यू पैशन होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए. कुछ नहीं करना है, सिर्फ पैसे कमाओ, क्योंकि पैसे कमाओगे तो तुम्हारी एक्चुअली तुम्हारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आने लगेगा, या तुम्हारी इज्जत होगी बाहर. इनफैक्ट अगर तुम्हारी इज्जत होगी भी ना बाहर, तुम्हें नहीं लगेगा कि हो रही है, तुम्हारे अंदर यही लगेगा कि you'll you'll always be inferior. So first is just chase and run towards that security money. It can be 10,000 rupees a month, it can be 1 lakh rupees a month, it can be 10 crores a month, it can be 100 crores a month, whatever that amount is for you. So first is that. Then only बाकी सब चीज़ों के पीछे भागना start करो. That is what I have realized in my journey. So till pandemic, मैं सिर्फ पैसे के पीछे भागता था. मतलब कि पैसे कमाने हैं और कुछ नहीं अपने को करना है लाइफ में. पैसे कमाएंगे तो मस्त होगा, वेकेशन अच्छी होगी, पार्टी अच्छी होगी, बाहर अच्छा घूमेंगे, गाड़ियाँ होगी, लड़कियाँ होगी, ऑल दैट होगा, एवरीथिंग यू थिंक अबाउट इट. कुछ नहीं मिलता. सिर्फ तुम बिजी रहते हो और पैसे कमाते रहते हो. कुछ भी नहीं मिलता. For 8 years, till the time I was from 16 to 22, all I did was chase money. I didn't party, I didn't enjoy, I didn't vacation. कुछ नहीं करता था, पैसे ही कमाता था. And anyone who is in this journey, जो entrepreneur है वो समझ सकता है कि अगर उसका एक ही काम होता है, वो दिन भर काम करता है, वो काम के बारे में सोचता है. जब वो काम नहीं कर रहा होता है तो उसको काम के बारे में याद आ रही होती है. जब वो काम कर रहा होता है तब उसको लगता है कि और कितना काम करना है. वो सिर्फ काम कर रहा होता है. सो ये सारे जो आइडियाज़ है ना कि यू कैन हैव फन, यू कैन डू दिस, यू कैन हैव प्लेजरेबल लाइफ, ऑल दैट इज बुलशिट टिल द टाइम यू हैव मनी. Once you have that, then things change completely. So what changed for me was कि मैं मेरे घर वालों के साथ काम करता था. And उस टाइम फैमिली बिजनेस, फैमिली strong values and everybody is very connected. So कुछ हुआ फैमिली में where me and my dad started fighting. And we started fighting over little things, where he started dominating me on my decisions, or certain decisions which were probably not right from his side. So I thought that I want to reach a point where I don't want to give anyone the control of my money and my decisions. And that's why I decided to leave that business and start something of my own. Completely got away from it. And फिर उसके बाद 6-7 months बहुत ही tough phase था where I was not able to manage certain things. And I was, मेरा ego इतना ज़्यादा था कि मैं घर से मांगूंगा भी नहीं, मैं घर वालों से बात नहीं करूँगा, all that. Everything was there, right? Where full time, not even for a day, my parents didn't even say me कि अरे तू हमसे पैसे क्यों नहीं ले रहा है, कुछ नहीं. They were like always supportive. But in my head I was like मेरे को नहीं लेना, मुझे सब खुद बनाना है. एक हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा फेज आता है जहाँ पे तुम थोड़े से पागल हो जाते हो. So I got to that phase where I was like, I want to do this and I won't take any money and I'll change the course of my life. And उसके बाद ही podcast start हुआ, उसके बाद ही मेरी content creation journey start हुई, उसके बाद investment start हुई, उसके बाद सब हुआ. So I reached my bottom of my life where I wanted to bounce back and I wanted to do certain things as per me, and it happened. And उसके बाद से फिर the good thing is my relationship with my dad is even more stronger than it was ever. Because now he respects me on other level as well. Earlier he respected me as a son. Now he respects me as an individual. And that to me was the biggest win that I won. You also recently launched House of X. So would you like to tell the audience about what House of X exactly is? So House of X एक ना experiment है जो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में अब attention बहुत important होते जा रहा है. तो पहले ऐसा होता था कि जिसके पास बहुत पैसा है वो कुछ भी कर सकता है, राइट? आई थिंक नाउ अब जिसके पास अटेंशन है वो कुछ भी कर सकता है. एंड दिस इज़ वी आर सीइंग थ्रू थिक एंड थिन. जो रातों रात फेमस हो जाते हैं वो रातों रात अमीर भी बन जाते हैं. जो रातों रात अमीर बन जाते हैं वो इतना खर्चा करते हैं कि वो फेमस हो जाएं. सो अटेंशन इज़ द थिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल वांट. सो आई थॉट कि अगर अटेंशन एक्चुअली लोगों के परचेज डिसीजंस को डिक्टेट कर रहा है, व्हाई नॉट यूज पीपल हु हैव अटेंशन एंड बिल्ड समथिंग मीनिंगफुल. क्या कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसी चीज़ें हम बना सकते हैं जो लोगों को ज़रूरत हो, D2C, कंज्यूमर गुड्स या सॉफ्टवेयर या व्हाटएवर, जो लोगों को ज़रूरत हो, एंड उसको पार्टनर करें विद समवन हु हैज़ अटेंशन. कैन टुगेदर दे वर्क एंड बिल्ड समथिंग बिगर.
that was the experiment. That's how House of X was started. So today, I still call House of X as an experiment. I don't call it a startup. कि हम लोग कुछ ना कुछ experiment कर रहे हैं where we are using the influence of certain people and expanding their sense of feeling and sense of community to the audience, where audience can now become their purchasers, followers, and customers. And that's what House of X does. So. Excellent. So I know you've covered a bit of it, but for the larger audience, I just want to know, you know, abhi sab log, we are in India, right? So society plays a lot of role. हमको बोला जाता है 10th standard, 12th standard, A grades, you know, do doctorate, do chartered accountancy, or do MBAs. But in last few years, we've seen an evolution where entrepreneurship has grown, content creation as a whole has grown. But you started it way early, right? When 16, you said you started YouTubing at 16. So, एक तो घर का माहौल कैसा था? Because obviously, you know, fights होती होगी जो आपने बताया. And दूसरा होता है कि कब तक आप प्रूव करोगे कि parents agree to that? Because mindset shift is a very big thing, right? So वो road map क्या था? And you know what is your message? मेरे साथ ना मेरे एक चीज़ अच्छी थी कि मेरे पेरेंट्स करियर को लेके काफ़ी सपोर्टिव थे और वो इसलिए थे कि उन्हें दिख गया था पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं हो रहा है इसका तो ये पढ़ के तो 45-50% ला पा रहा है, इससे कुछ और ही करवा लो जो करना है इसको. सो दे वर वेरी क्लियर दैट कि जो करना है करो, बट उनको प्रॉब्लम थी कि जो हर थोड़े दिन में मैं कुछ और करने की कोशिश करता था ना उससे. माई पेरेंट्स, मॉम एंड डैड बोथ वर वेरी क्लियर कि डैड वॉज कुछ भी कर लेकिन एक चीज़ कर, और वो ऐसी कर कि तू इंडिया का नंबर 1 बने या वर्ल्ड का नंबर 1 बने, और कुछ नहीं करना है. ये हर एक महीने में नई चीज़ करना, ये बकवास चीज़ें छोड़नी पड़ेगी. यू हैव टू पिक अप वन थिंग, बट कुछ भी कर ले. तुझे झाड़ू लगाना है तो झाड़ू लगा, लेकिन तू ऐसा लगाना कि पूरे इंडिया में तेरे से बेटर कोई क्लीनिंग नहीं करे. दैट वाज क्लियर वर्ड्स. सो टू मी सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ करियर वर ऑलवेज देयर. एंड मॉम एट द सेम टाइम, मतलब मम्मी के लिए तो मैं आज भी लाडला हूँ, तब भी लाडला था. So she is always like, जो करेगा मेरा बेटा तो स्टार ही बनेगा. Right? That's my mom. Like even today she looks at me and I love taking my mom on long drives. और मैं ऐसे ही मुंबई में ड्राइव कर रहा हूँ मम्मी के साथ और मैं दिखाता हूँ, मम्मी आज ये वाली बिल्डिंग है ना, इसमें पेंट हाउस लेंगे. मम्मी बोलती है अरे मेरा बेटा पूरी बिल्डिंग लेगा. Right? So mom is in her awe of the kid कि बचपन से उन्होंने मुझे crazy delusional dreamer बनाया है, irrational optimist. So I think credit for that to mom, and dad has always supported. Now coming to किस point तक proof करना पड़ता है. I think जिस दिन तुम्हारे खर्चे as an individual, as a kid, तुम खुद करने लग जाते हो, घर वाले automatically इज्जत करने लग जाते हैं. Now अगर तुम्हारे खर्चे 10,000 रुपये महीना है तो तब भी इज्जत करेंगे, 10 करोड़ महीना तब भी इज्जत करेंगे. I think dad, this is my equation with my dad. पापा को सिर्फ ये देखना है कि क्या मेरा बेटा मेरे बिना कमा सकता है कि नहीं कमा सकता. जिस दिन उनको ये भरोसा हो गया ना, उस दिन वो सब बोलना बंद कर देते हैं. जब तक उन्हें लगता है ना कि यार मेरे बिना इसका क्या होगा, तब तक वो हर चीज़ में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं तू ये गलत कर रहा है, नहीं तू ये गलत कर रहा है. बिकॉज इट्स नॉट कि वो कुछ चाहते हैं उनके तरीके से कुछ हो, वो बस ये चाहते हैं कि यार मैं नहीं हुआ तो ये कैसे करेगा. And that fear becomes control, that control becomes dominance, that dominance becomes frustration, and that frustration actually leads to fights. So I think proving वाला जो point आता है, जिस दिन तुम्हारे खर्चे equal हो जाए. अब तुम फैमिली बिजनेस में स्पॉइल्ड किड हो, जो तुम 1 लाख रुपए के जूते पहनते हो, 5 लाख रुपए के कपड़े पहनते हो, और तुम कमाते सिर्फ 10,000 हो, तो सीधी बात है यार, पापा डांटेंगे और मारेंगे भी. So if you're that, then you need to everything, just you need to cut it down. The day you cut it down, I think parents agree to it. Coming to careers, कि कितने सारे नए careers बन रहे हैं. The way, I think ये नया नहीं है. The way what is happening. When you sit down with your grandparents or parents, तब वो भी आपको ये बताएंगे कि उनके टाइम में ऐसा होता था कि हर 3-4 साल में कोई नया आदमी करोड़पति बन रहा होता था. पहले कोई ट्रेडर बन रहा होता था, फिर लोगों ने बोला फैक्ट्री वाले बन जाते हैं, फिर किसी ने बोला इंजीनियर्स बन जाते हैं, फिर किसी ने बोला कि ऐसे बिजनेस करने वाले बन जाते हैं, फिर किसी ने बोला रियल स्टेट में कर दो, फिर किसी ने बोला प्रॉपर्टी ब्रोकर में कर दो. तो यू विल सी दैट हर जनरेशन के एक टाइप है जहाँ पे तुम्हें मैक्सिमम लोग दिखेंगे, उसमें करोड़पति हैं, खरबपति हैं, एंड उसी में मैक्सिमम लोग हैं जो मीडियोकर है. सो प्रॉबेबली जो
आई थिंक जो रियल स्टेट या प्रॉपर्टी ब्रोकर था मेरे पेरेंट्स के लिए, वो हमारे लिए शायद कंटेंट क्रिएशन है राइट. हर दूसरा बंदा प्रॉपर्टी ब्रोकर होता था, हर दूसरा बंदा रियल स्टेट होता था, आज हर दूसरा बंदा क्रिएटर है. सो इट डजंट मैटर कौन से तुम जनरेशन में हो. ऑल दीज करियर्स वर ऑलवेज देयर, दे विल ऑलवेज बी देयर. ट्रेंड चेंज होते जाएंगे, करियर्स चेंज होते जाएंगे, बट ये हमेशा रहेगा कि हर 3-4 साल में कोई ना कोई नई चीज़ आते जाएगी, कोई ना कोई चीज़ आती है. आई लव रीडिंग हिस्ट्री और दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड कि वो आती जाती है. यू नीड टू पिक अप तुम्हें क्या करना आता है या तुम्हें क्या करने में मज़ा आता है या किस चीज़ को करने में तुम्हें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, एंड देन जस्ट गो हार्ड एट इट. सो दीज आर जस्ट मीडियम्स. In terms of, I think the other thing which a lot of people must have said here already, because startup, I feel the biggest lesson I've learned by doing 3 successful gigs till now, all in triple digit cross, and 7 failures out of doing like 10 things, it's much, much important that you become big shark in a small pond than you become a small fish in a big island or whatever the ocean. कोई भी एक छोटी चीज़ में सबसे बड़े बन जाओगे तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कोई होना ही नहीं चाहिए. दिस एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद माई पॉडकास्ट. आई विल टेल यू, मेरे को पॉडकास्ट बनाना था पर्सनल ग्रोथ पे. अब पर्सनल ग्रोथ इतना बड़ा है कि मैं अगर इससे स्टार्ट करता तो शायद मेरा पॉडकास्ट कभी स्टैंड आउट नहीं करता. तो डे 1 पे मेरा पॉडकास्ट था कि किसी 20-year-old को स्टार्टअप स्टार्ट करना है ना, तो सिर्फ उन्हीं के लिए. मेरा पॉडकास्ट उसमें सबसे बड़ा बना. फिर सेकंड नंबर था कि अब स्टार्टअप्स में सबसे बड़ा पॉडकास्ट मेरा होगा. फिर मेरा पॉडकास्ट सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप पॉडकास्ट बना. फिर उसके बाद आई वाज लाइक कि अब ना मेरे को लीडरशिप में सबसे बड़ा पॉडकास्ट बनाना है. तो देन वी गॉट कि इंडियाज नंबर 1 लीडरशिप पॉडकास्ट. देन वी वर लाइक कि नाउ वी वांट टू गो पर्सनल ग्रोथ में सबसे बड़ा. तो फिर हमने पर्सनल ग्रोथ का उसमें सबसे बड़ा किया. अब वी आर एट अ स्टेज दिस सिंस लास्ट 5-6 months वेर वी सेट कि हमें इंडिया का हर चीज़ में, हर कैटेगरी में सबसे बड़ा पॉडकास्ट बनाना है, और फिर हमने वो बना दिया. रिसेंटली 2 weeks ago, 3 weeks ago, आई थिंक वी बिकेम नंबर 1 पॉडकास्ट इन द कंट्री. सो ऑल ऑफ दिस हैपेंड बिकॉज वी वर वेरी फोकस्ड कि हम एक छोटी चीज़ में बहुत बड़े बन जाएंगे. वहाँ की ऑडियंस फिर हमें धीरे धीरे और बड़ी 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 करते जाएंगे. अगर हम डे 1 पे ट्राई करते कि सबसे बड़े पॉडकास्ट बनेंगे, तो इफ़ यू लुक एट राइट नाउ स्पॉटिफाई चार्ट्स, आप टॉप 5 देखोगे वो अप एंड डाउन होते रहते हैं. बट टॉप 5 अगर देखोगे तो उसमें रिलीजन, हॉरर एंड सेक्स, ये टॉप है. अगर मुझे डे 1 पे मैं सोचता कि मुझे नंबर 1 पॉडकास्ट बनाना है, तो ना मुझे रिलीजन के बारे में उस टाइम कुछ पता था, ना मैं हॉरर स्टोरी से डरता हूँ, ना मुझे उस टाइम सेक्स के बारे में कुछ पता था, तो मैं कभी पॉडकास्ट ही नहीं बना पाता. और बनाने की कोशिश भी करता तो बहुत एवरेज मीडियोकर होता. नंबर 1 तो बहुत दूर की बात है. सो दैट्स व्हाई आई फील वेदर यू आर डूइंग अ स्टार्टअप और यू आर डूइंग कंटेंट और यू आर डूइंग एनीथिंग, pick up like a very, very, very small thing and become the biggest in that thing. Automatically, that will give you fame, recognition, network, money, and that you can use it to build bigger things. Like today, when we became number 1 in India, then I'll tell you a story, okay? The team which I was talking about, कि क्यों I don't do anything and my team does it. We hit number 1 on Spotify. I was like, number 1 बन गए, crazy. मैं बाहर गया, my team was like, guys, we are finally number 1. Everybody clapped. And I thought कि सब बोलेंगे पार्टी करो, incentive, appraisal, अब तो मज़ा आएगा. सब 2 मिनट के अंदर normal. And I was like, what happened? 22 people who work on the podcast. Everybody said, world number 1. अब world number 1 चाहिए. So the team is hungrier than me. And they force me कि अब हम वो सपने देख सकते हैं कि अब इंडिया अचीव कर लिया ना, अब एक इंडियन पॉडकास्ट हो जो ग्लोब में सबसे बड़ा बने. एंड द वे वी हैव डन मैथ्स, आई थिंक इन नेक्स्ट 7 to 9 years वील बी वर्ल्ड नंबर 1. वर्ल्ड नंबर 1 हमसे सिर्फ 200 टाइम बड़ा है, फोड़ देंगे हम. आई थिंक सिर्फ 200 गुना बड़ा है हमसे. एंड 200 गुना 7 साल में बहुत आसान है यार, बहुत आसान है. इंडियंस इतने इंडियंस ही बना देंगे हमें. So that's the dream. We go one step at a time, and then you keep getting bigger and bigger and bigger. So you've got so many feathers on your cap, and I think all of us look up to you, Raj, here. And I think for everyone, you would be probably called a super successful man. But what, according to you, is success? How would you define success to be? Wow.
I'll tell you, I don't think I'm successful yet because now I see myself when I go to sleep. I think this phase that I'm going through right now, ये बहुत unsuccessful phase है मेरी life का, because मैं ना मेरी mom और dad से अलग रहता हूँ, and that is the most unsuccessful thing anyone can live through. Every night I have to call my mom and just talk to her. I cannot actually sleep with her. I cannot discuss or fight with my dad. That real feeling, I cannot support my brother. Even I have, like, let's say, means to support it. The proximity तुम्हारी family से तुम्हें जितना दूर रखती है ना career की वजह से, I think that is unsuccessfulness, not successful. So to me, this is the phase where I'm going through. But ये कुछ 6 से 12 महीने में ख़त्म हो जाएगा, where my family will start living with me, where I'm going to move them with me together and we all must have a great life. But this is a phase. So I think the biggest challenge that हर बच्चा जो अपने परिवार से दूर होता है और वो बाहर दिखता है सब लोगों को कि यार क्या फोड़ रहा है लाइफ में कर रहा है, उसको पूछो कि रोज़ जाके वो घर पे अकेला सोता है तब उसको कैसा लगता है, क्योंकि वो रोज़ अकेले ही ट्रैवल करता है, अकेले ही खाना खाता है, अकेले ही उठता है और फिर वो सेलिब्रेट भी अकेला करता है और रोता भी अकेले. सो दैट फेज इज़ वेरी अनसक्सेसफुल. दिस इज़ अ स्ट्रगल फेज. इस स्ट्रगल फेज क्यों करते हैं? क्योंकि एक दिन बेटर होगा जहाँ सबकी लाइफ बेटर हो जाएगी, where you will break that generational curse and you will make everybody healthy, wealthy, wise, and relationships will be great. So uske liye we all are working. One day I'll be successful. Today I'm not. So I'm sure the audience has, a lot of questions, and I would really want them to interact with you as well. But just ending up with a couple of questions, one from me and him. I have heard and I know that you're a little shy, you were an introvert as well. And stage fear or public speaking was something that was not something that naturally came to you. But today I think, the world knows. I would not say India now, the world knows because you've walked the kins. So they know that, you are a public figure. What switched? Or बहुत लोग बोलते हैं first step लेना important है. But what in your life switched that it helped you to become that? I'll tell you a real incident जो हुआ जिसकी वजह से मैं speaker बना. I'll tell you the underlying motivation behind क्यों बना. तो पहले real incident बताता हूँ. मैं कॉलेज में था फर्स्ट सेमेस्टर में, जहाँ पे मेरी अटेंडेंस बिल्कुल लो थी. तो कॉलेज में मेरे इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं, मतलब थ्योरी एग्जाम लिखनी होती है और एक प्रेजेंटेशन देना पड़ता है. जिसकी अटेंडेंस नहीं होती उसे प्रेजेंटेशन कंपलसरी होता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन नहीं दिया तो फेल हो जाएगा. तो मुझे आउट ऑफ फोर्स देना पड़ा. मुझे कभी नहीं देना था. सो प्रेजेंटेशन देने के लिए 4 लोगों की टीम थी. 16 मिनट का स्लॉट था. टेक्निकली 1 पर्सन विल गेट 4 मिनट्स. एंड उन्होंने फोर्स किया कि मुझे देना ही पड़े. सो मैं मेरी टीचर के पास गया, इंग्लिश टीचर आई रिमेंबर. सो आई वेंट टू हिम एंड आई सेड कि सर मुझे प्रेजेंटेशन नहीं देना, मेरे को बहुत डर लगता है. एंड माई लिटरल वर्ड्स वर सर फटती है, लाइक मैं नहीं दे सकता, आप मेरे से लिखवा लो जो लिखवाना है, मैं लिख के ला दूंगा, मैं होमवर्क कर लूँगा, मैं सब कर लूँगा, प्लीज़ मेरे को ये मत करवाओ. आई डोंट नो वॉट ही सॉ इन मी. उसने बोला कि अब तू सबसे पहले ही देगा. सो आई वॉज द फर्स्ट वन. अब फर्स्ट इंसान को प्रेजेंटेशन देना है एंड मेरा प्रेजेंटेशन था 30 डेज बाद. इन 30 डेज मैंने 4 मिनट का स्लॉट जो था मेरा, वो इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया कि मुझे वर्ड टू वर्ड पता था. इनफैक्ट मुझे लोगों को ना आंख में देखने में बहुत डर लगता था, तो मैं देखता नहीं था. मुझे लगता था लोग हंसेंगे, कॉमेडी, दिस इज बिकॉज यू आर एम्बैरेस कि कैसे तुम बोल रहे होगे. तो मैंने प्रैक्टिस कर ली थी कि मैं पहले 10 सेकंड यहाँ देखूंगा, फिर 10 सेकंड यहाँ देखूंगा, फिर 10 सेकंड यहाँ देखूंगा, फिर आगे देखूंगा. प्रॉपर मैंने प्रैक्टिस कर ली. तो 4 मिनट का मेरा कोरियोग्राफ्ड एक्ट था, एंड टू एंड. अगर मुझे कोई बीच में बोल देता कैन यू रिपीट, मैं भूल जाता. मुझे बस ये बता था करना क्या है. 30 दिन मैंने बहुत मेहनत करी, रोज सुबह उठ के डेली मैंने यही किया. फिर जब प्रेजेंटेशन आया, आई गेव दैट प्रेजेंटेशन, एंड प्रेजेंटेशन देने के बाद एवरीबडी गेव मी स्टैंडिंग ओवेशन और बहुत तालियां वाली. इनफैक्ट फिर उसके बाद एक टॉपर मेरी क्लास की थी, वो खड़ी हुई. मतलब अब तो गए, क्वेश्चन पूछ ले कि पता ही नहीं है कुछ. इतना ही प्रिपेयर किया था, इसके करा ही नहीं था. उसने बोला यार द वे यू वर इंटरेक्टिंग विद एवरीवन इन द ऑडियंस वाज सो गुड. तू सबको देख रहा था, सबको इंक्लूडेड फील करा रहा था. आई वाज लाइक अब मैं क्या बताऊं.
एंड वहाँ पे मैंने जो एक वर्ड निकला मेरे से मुंह में लाइन निकली कि इट जस्ट कम्स नेचुरल टू मी. दैट फीलिंग मुझे कॉलेज में ऐसा लगा कि यार मैं तो स्टार हूँ, अब मैं ही शाहरुख खान हूँ. Right? क्योंकि उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद माई टीचर ही सेड ये सेम प्रेजेंटेशन तो दूसरी क्लास में भी देना, बिकॉज आई वॉन्ट अदर पीपल टू सी हाउ प्रेजेंटेशंस आर गिवन. सो आई बिकेम दैट बूस्टेड मी सो मच कि यार अपन हीरो हैं, अपन स्पीच देंगे, मज़ा आ जाएगा. और मैं फिर उसके बाद आई जस्ट क्रेव्ड अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर अपॉर्चुनिटीज़. मुझे कीड़ा लग गया. फर्स्ट टाइम लाइफ में किसी ने अप्रिशिएट किया था. फर्स्ट टाइम लाइफ में कॉम्प्लीमेंट मिला. आज तक तो जब तक वहाँ पहुँचा था तब तक मुझे ढंग से ना इंग्लिश आती थी, मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमाता था, ना मैं ढंग से दिखता था, कुछ भी नहीं था. एंड इफ़ आई शो यू माई ओल्ड पिक्चर्स यू वोंट बिलीव दैट दैट्स मी. सो कभी किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया, कभी किसी ने बात नहीं करी. पहली बार सबने तालियां बजा दी, मैं मज़ा आ गया, मैं दिस इज़ माई थिंग. एंड उसके बाद डेली आई केप्ट प्रिपेयरिंग एंड आई मेड अ रूल कि आई वॉन्ट टू मीट वन पर्सन अ डे एवरी डे सो दैट आई अंडरस्टैंड एवरी ह्यूमन बींग. एंड एक बार मैं सबको समझ गया तो मैं किसी के सामने बोल सकता हूँ. 10 years, I think now it's 12th year, 11th year or 12th year. There has not been a single day where I've not met one person. Every day I meet one person and try to understand them, and वो मुझे और confidence देता है to actually become a better speaker, because I feel like I understand people and that's why they can understand me when I'm on the stage. So that's the biggest tip that I have learned in life. Suraj, today at 21 by 72 Summit, we've got thousands of founders, hundreds of investors from across Pan-India, across UAE, Singapore, US. So what do you think a summit like this, how does it play a pivotal role in building a strong corridor for startups and helping the overall ecosystem grow? I love events like these. I'll tell you one thing. The biggest, I think, in my journey, the biggest part with something that has played, that is events like these. Events like these have given me so much, and I'll tell you what all gave me, and I think हर किसी को ऐसे ही देता है. ऐसे events ना, सबसे पहली चीज़ मुझे जो करते हैं, मुझे सपने देखना सिखाता है. मुझे मज़ा आता है, स्टेज पे कोई आता है, मुझे पता होता है वो 4-5 साल पहले हमारे जैसे ही था, ऐसे इवेंट कहीं अटेंड कर रहा होगा, अब आके फालतू ज्ञान दे रहा है. तो मुझे लगता है ये पहुंच गया तो भाई मैं ही पहुंच जाऊंगा. सो मुझे ऐसा लगता है कि the more I meet speakers, the more I meet star founders, whoever in the country or globally, like from Richard Branson to Barack Obama to India में निखिल कामत, कुणाल शाह, अर्जुन वैद्य, all of these people, जितने लोगों से मैं मिला हूँ, मुझे सबसे मिलके लगता है कि यार इन्होंने कर लिया. Like I look at Richard Branson, like इसने कर लिया, मैं भी कर सकता हूँ. That is one thing which I think events like these give you. I'm sure all of you must be feeling somewhere कि भाई इसने कर लिया तो मैंने भी कर लूँगा यार, मतलब सेम ही हम लोग. So that first step is very, very important. It teaches you that you can dream big and you can achieve it. Second, यहीं पे बैठे लोग हैं ना, वो business partners बन जाते हैं, वो तुम्हें कुछ ज्ञान दे देते हैं, कुछ सिखा देते हैं, तुम्हारी pitch बना देते हैं, कोई co-founder बन जाता है, कोई तुम्हें lifelong friend बन जाता है, कोई mentor बन जाता है. So people here, you can actually talk the same language. क्योंकि तुम जब घर पे जाते हो, तुम अपने प्रॉब्ली हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या सिस्टर, ब्रदर किसी बात कर रहे हो, उसे बताते हो कि यार मेरे दिमाग में ना ऐसा चल रहा है, ये करूँगा वो करूँगा. वो तुम्हें समझता है क्या बेवकूफ़ आदमी, दिन भर इसको क्या लग रहा होता है, 2 रुपये नहीं कमा पा रहा है, ये फालतू बातें कर रहा है. बट व्हेन यू टॉक हियर विद समवन कि भाई मार्स पे जाएंगे, तो बोल हाँ भाई मार्स पे कैसे जाएंगे. तो यहाँ सारे सरफिरे लोग मिलेंगे जिनको देख के, इनफैक्ट मैं जब भी इवेंट्स में आता था, मेरे पास वाला बैठा हुआ है और मुझे ऐसा लगता था यार मैं तो इतना क्रेजी नहीं सोचता, ये तो बहुत क्रेजी सोचता है. मुझे लगता है सब में स्मार्ट मैं ही हूँ, बाकी सब तो बेवकूफ़ जैसे सोचते हैं, राइट. एंड दैट गिव्स यू सो मच कॉन्फिडेंस, बिकॉज देन यू कैन टॉक योर ओन लैंग्वेज. तुम अपनी बातें ही कर सकते हो लोगों से. सो दैट्स द सेकेंड विच हैपन्स. एंड थर्ड, द रिपल इफेक्ट, कि इसके बाद जाके जब घर में लोग जाते हैं ना, जो सबसे मेन चीज़ जो मुझे लगता है, जो मुझे दिया था इवेंट्स में, ऐसे इवेंट्स में मुझे इनसिक्योर बना देते हैं. मुझे लगा था कि अपन कुछ भी नहीं है, मतलब क्या ही हूँ मैं, कौन हूँ. मुझे लगता है कि ना मैं इसके पास में कोई बैठा होगा इसके इतना अच्छा बोलता हूँ, ना मैं इतना अच्छा दिखता हूँ,
ना मैं मेरा आइडिया इतना बढ़िया है, ना मेरे पास इतने पैसे हैं, फुल टाइम इनसिक्योरिटी लगती है एंड दैट इनसिक्योरिटी पुशेस यू टू एक्चुअली बिकम बेटर. तो मुझे ऐसे इवेंट्स ना ऐसे फील कराते हैं कि मैं बहुत बेकार इन्फीरियर हूँ एंड दैट्स वाई आई गो बैक होम एंड विन. एंड दैट्स व्हाट दीज काइंड ऑफ इवेंट्स डू एंड दैट्स वाई दीज इवेंट एग्जिस्ट. आई थिंक they do so much good to each and everyone, and I feel it's brilliant to be here. Imagine how many people I feel like give me कितने लोगों को लगा है कि यार अपन तो बहुत ही कम है यार, मतलब यहाँ तो बहुत एक से एक बैठे हुए, अपना क्या होगा, right? I am same, like I'm feeling it right now when I went there. नीचे किसी ने मुझे कोई स्टार्टअप बताया, मैंने ऐसी भी चीज़ें होती है. I was like shit, घर जाके देखना पड़ेगा क्या होता है. इन्होंने मुझे okay I'll date. So I've heard about lab grown diamonds. I've never actually researched about it. Probably सूरत है तो यहाँ पे सब लोगों को ज़्यादा पता होगा. But I've never researched about it. I don't know the difference between a normal diamond and a lab grown diamond, right? इन्होंने मुझे खड़ा कर दिया lab grown diamond के सामने. अब मैं अंदर से बस ये डर रहा हूँ कि लोग मेरे से फोटो खिंचा रहे हैं, बट ये मेरे से पूछ नहीं ले कुछ. इसने पूछ लिया तो मैं जवाब क्या दूंगा? And now that has become, instantly I made a note on my phone. The moment I'm leaving this event tonight, I'm gonna do full research on lab grown diamond. Tomorrow मेरे से debate कर लेना. So that's what these events do to you. They make you insecure, inferior, and that's why you're motivated when you go back home and you wanna kill it in life. And that thanks to you guys for doing these events. And it's crazy that Surat is one of the biggest capital in India for businesses. I mean, startup fancy word है, but धंधे यहीं होते हैं. तो जब धंधे यहाँ पे होते हैं तो यहाँ पे स्टार्टअप जैसे इवेंट्स को एक्चुअली बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है. एंड थैंक्स टू यू गाइस दैट यू आर डूइंग इट. Thank you so much, Raj, again for being a part of our summit. It really means a lot from the bottom of our hearts. Thank you so much. So thank you. I think we'll open the floor for the audience. You can have a seat. So, Anuj. Hi, Raj. Hi, what's Namaskar. your name? D Shaw. क्या? D Shaw. That's my D-Shock. name. Yeah. Everybody say hi D-Shock. Thank you guys. Thank you so much. That's so mom. ये जो गाना आप सब सुन रहे हैं, ये गाना मैंने बनाया एक्चुअली. So thank you so much for that. Thank you so much. राज भाई, I just want to ask, आज बहुत लोग ने बहुत कुछ बातें की हैं. How we grow, how we do better things in life. यार कभी किसी ने ये बात नहीं की जब नीचे गिरते हैं, how do you hold yourself? क्योंकि when there is darkness, you have to bring light for yourself. I don't think light आती है. हमको खुद को लानी पड़ती है light. How can someone just grow from the darkness? Because I think no one has spoken about that. You are the perfect person to speak about that, bro. I'll tell you very basic answer. मतलब मैं इतना philosophical नहीं हूँ तो मैं इतने better answers नहीं दे पाऊँगा. Probably somebody would be able to give you proper curated framework कि क्या करना चाहिए जब गिर जाओ तो. मुझे ऐसा लगता है मैं खुद से बस question पूछता हूँ and. Fail हो गया and. मेरे से नहीं हो पा रहा and. मैं सही बंदा नहीं उस टाइम पे and what? पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ अभी मैं and जॉब मिल जाएगी, जॉब नहीं मिलेगी and कुछ फ्रीलांस कर लूँगा and so I always just think about और क्या भाई, क्या ही हो जाएगा, मतलब क्या है. So to me I don't see anything as failure. मैं बहुत irrationally optimist बंदा हूँ. मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत चीज़ें अचीव करने के लिए और मैं सब अचीव करने वाला हूँ. और मुझे लगता है मैं ऐसे ही ऊपर से आया हूँ, मेरी मॉम ने मुझे बोल दिया तो मैं कर लूँगा. सो टू मी दैट्स वेरी जस्ट इज लाइक अ क्रेजी बिलीफ. मुझे लगता है बस मैं ही हूँ और मैं कर लूँगा एक दिन. तो अगर मैं गिरता भी हूँ तो आई फील लाइक एंड वॉट, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कभी और. इनफैक्ट आई टेल यू वेरी स्टूपिड थिंग. आई फील द फेज दैट आई एम इन राइट नाउ, one day when I look back to this phase, I'll call it struggling phase. Like this is the struggle phase because we are going to be so big than this. Then ये लगेगा कि भाई इस time तो struggle कर रहे थे. And that is what I feel, that is my philosophy. तो जब गिरते हैं तो and what? I'm glad. Thank you so much, Raj bhai. Thank you so much. Good evening, sir. My name is Viven Gupta and I want to ask you 2 questions. Wow. First question is, what is your biggest weakness and strength? Second is, define yourself in 1 word. Define? Yourself in 1 word. भाई HR कौन लाया इधर? Tell me please. By the way, commendable. Like bro, like can we just have a clap for him? Like this. Look at him. Look at his age. It's crazy.
Vivek, thanks for asking me such insightful, deep questions, which I can never answer, but I'll try to. What's my biggest strength and biggest weakness? My biggest strength is, I think I'm people obsessed. That is my strength. And you can see that in my work. You can see that in my podcast. You can see that in every startup that I do. I think my biggest strength is I want to give value to everyone who's listening to me. And I want to bring some perspective जो कभी शायद लोगों ने मुझसे पहले कभी सुना नहीं. So I'm very, very, very people obsessed. I want to make sure that everyone who's giving me even 1 minute is either getting to know a newer side of me or getting to learn something new or is actually thinking that ki yaar, he's made me feel better about myself. So that is my biggest strength. I am people first. Every time I go up on the stage or when I do a podcast, I never think about how I am going to perform or what I'm going to do on stage. I always think about what are they going to get. Are they getting the real me? Are they getting the real value? Are they getting education? Whatever. So I think that's my biggest strength, that I'm people first. I don't know if it's strength for everybody, For me, it really worked in my career. My biggest weakness is I am delusional. I live in my own delulu. Like it's my own world. और मुझे लगता है कि जो मेरे according चीज़ें हैं वही सब सही है और वो बहुत बढ़िया है. So I think that delusion sometimes doesn't help you. Sometimes you have to be a little practical. Sometimes you have to be a little realistic. Sometimes you have to take calculated risk. You have to be a little analytical about your life. I think I'm not that. मैं बिल्कुल भी calculated नहीं हूँ. मैं बिल्कुल risk averse नहीं हूँ. I function out of optimism, and I think the worst advice which people give is be practical. I think that's the worst advice that anybody can give you. So to me, that is me, and I think that is a weakness because in some cases, I've tried to be extremely irrationally optimist, and it has not worked for me. So that I can say is one of my biggest weaknesses. If I have to define myself in one word, I would say relentless. And the reason to that is, I say this a lot in my organization to my people. The day we are not relentless, I feel we are restless, right? हमें relentless, if you look at our podcast or if you look at our startup, we are not the most knowledgeable ones. We are not the most insightful one. We are not the most good-looking one. We are not the most skilled or talented one. We don't have the biggest money backing us. We don't have biggest sponsors. We don't have the biggest setup or the production unit. We don't have anything which is number one. The only quality that we have is we outwork everybody. तुम कुछ भी कर लो हम तुमसे ज़्यादा काम कर लेंगे. तुम ट्राई कर लो मेरे गेम में मुझे बीट करने का, मैं तुम्हें वापस बीट कर दूँगा. तुम like open challenge to everybody. You try to do, let's say, think about podcast because most people know me through podcast. Let's say podcast, you try to do it. You do one step better than me. My whole team is going to go underground for 6 months. We'll come back and we'll beat you. You do 2 steps better than me. I'll do 20 steps better than you. We just outwork everybody. So relentless is the word which I think, because I think हम काम बहुत ज़्यादा करते हैं. हम दिन रात बस काम करते हैं. हमें और कुछ आता ही नहीं. I hope that answers your question. Okay, can we go at the back? The guy in yellow t-shirt. हाय सर. Hi. मैं सागर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सागर परफ्यूम. अभी मैंने सबको इंट्रो दिया था, आपको भी सर मेरे पास सेकंड टाइम माइक हुआ है. मैं एकदम छोटे से बिजनेस कर रहा हूँ अभी. 4-5 करोड़ का मेरा अभी ईयरली टर्नओवर है. तो मेरा क्वेश्चन है कि पहले तो कितना टर्नओवर है? 4-5 करोड़ का छोटा बिजनेस है ये. सर अभी तो मैं वेल सेटेड भी हूँ, बट वो मतलब देखते हैं ना कि यार सर किसी को कि भाई 50 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ बना दिया, तो वो ड्रीम मतलब मेरे माइंड में है. अभी मैं सच्ची में अच्छा बिजनेस है, वेल सेटेड हूँ, प्रॉफिटेबल भी हूँ, खुद का घर का फैक्ट्री भी सेटअप है, घर का अच्छा घर भी लास्ट ईयर ले लिया, गाड़ी भी है. सूरत ने काफ़ी सारा दिया है, साइकिल लेने का भी पैसा नहीं था. तो आई मतलब रियली, बट अभी जो शार्क टैंक देखने के बाद जो ड्रीम खुले हैं 2-3 साल से, तो वो मैं बता रहा हूँ. तो सबसे पहले तो सर आपके शो में आने के लिए सर हमारे जैसे छोटे बिजनेसमैन के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी हो तो बताओ. और स्पेशली मेरे लिए ये सारे लोगों का क्वेश्चन है, मेरा भी है
स्पेशली मेरे लिए भी कि मैं आपके पास आऊं और कुछ क्वेश्चन आंसर आप करें तो। और दूसरा ये है कि मेरी एक प्रोडक्ट मतलब मेरी प्रोडक्ट को मैं हाईलाइट करूं और कैसे बड़ा बनाऊं इंडिया में और ग्लोबली भी, स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए कुछ टिप्स दे दीजिए। और थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरे को चांस दिया और लगता है आज मेरा येलो टी शर्ट लकी है। और ये स्पेशली मेरी वाइफ ने सजेशन किया था। You know how did you sound to me? मुझे ऐसा लगा कि किसी ने वेलकम देखिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। He sounded like that, right? भाई सब तो है। But congratulations on the things you're doing. I think one of the best advices which my mentor gave me, it's unrelated to your question, but I'll tell you to everyone. मेरे mentor ने मुझे एक बात बोली थी, कभी भी लाइफ में ना खुद को इंट्रोड्यूस ऐसे मत करना कि मेरा एक छोटा बिजनेस है या मैं छोटा बिजनेसमैन हूँ, कभी मत करना। हमेशा बोलना कि मैं ये काम करता हूँ, छोटा या बड़ा तुम खुद बना देते हो, सामने वाले के लिए मे बी वो बहुत बड़ा हो। यू शुड नेवर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विथ मेरा एक छोटा बिजनेस है, अभी तो मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ। उसे क्या पता कि तेरे लिए ठीक ठाक क्या है और बड़ा क्या है और छोटा क्या है। यू शुड नेवर डू दैट। लाइक दैट्स एडवाइस विच माई मेंटोर गेव मी एंड आई थिंक इट्स रियली गुड। सो ऑलवेज स्टार्ट विथ मैं ये करता हूँ, छोटा है बड़ा है सामने वाला देख लेगा यार। ओके, सेकेंड इज हाउ डू यू कम ऑन माई पॉडकास्ट। वाओ, I'll tell you. So usually 2 ways होते हैं। फर्स्ट इज मैं जिसके बिजनेस के बारे में इंटरेस्टेड होता हूँ जानने के लिए, या कोई इंडस्ट्री जो मुझे लगता है कि यार मैंने कवर नहीं करी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं उनको खुद रीच आउट करता हूँ। कोई भी हो मैं उनको खुद रीच आउट करता हूँ, खुद ढूंढता हूँ। डजेंट मैटर। मेरे पॉडकास्ट पे ऐसे लोग आ चुके हैं जिनका 2-3 करोड़ टर्नओवर है, और ऐसे लोग आ चुके हैं जिनका 20,000 40,000 करोड़ टर्नओवर भी है, राइट। तो बहुत लोग हैं, बहुत रेंज है, बट जिसका इंटरेस्ट मुझे आता है तो दैट्स व्हाई आई डू इट। मेरी पूरी टीम भी ऐसे ही करती है। सो दैट इज़ फर्स्ट। सेकेंड वे इज बहुत लोग ना हमें ईमेल्स डालते रहते हैं कि हम आना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। सो जब भी वो ईमेल डालते हैं मेरी पूरी टीम वेट करती है। हमारा एक लेयर बना हुआ है जिसमें हम 10 क्वेश्चंस पूछते हैं। व्हाट इज़ अ बिजनेस अबाउट, व्हाट इज़ यूनिक अबाउट बिजनेस, व्हाट कैन यू टीच टू आवर ऑडियंस दैट नोबडी हैज टॉट टू आवर ऑडियंस एवर बिफोर, what makes you stand out, why specifically you, what specific validations you have earned in life जिसकी वजह से जो आप बोल रहे हो मैं उस पर बिलीव करूँ। ऐसे 10 क्वेश्चंस हैं जो पूरी टीम जिसके ऊपर टेस्ट करती है, एंड उसके बाद फिर वो स्पेसिफिक लोगों को चूज करती है। सो दीज आर द 2 ways हाउ वी डू इट। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहाँ पे 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ बिजनेसेस जो शायद इंडिया के टॉप 10 ग्लोबल हाउसेस में, लाइक इंडिया के बिजनेसेस होंगे बहुत बड़े बड़े, हमने उन्हें भी रिजेक्ट किया है। एंड द रीज़न की रिजेक्ट क्योंकि वो हमें ये नहीं बता पाए कि वो हमारी ऑडियंस को सिखाएंगे क्या। सो अगर वो 10 क्वेश्चन नहीं होते ना, वी रिजेक्ट इट। वी डोंट केयर हु यू आर, व्हाट डू यू डू। फॉर टू मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कैन वी टीच समथिंग टू आवर ऑडियंस और नॉट। सो आई थिंक आई होप दैट आंसर्ड बोथ ऑफ योर क्वेश्चन। Hello, sir. Here from You know, I honestly, I'll tell you, I can't name, but we got an opportunity for India के top 5 billionaires में से एक की। Okay? Can't name, you guys can think, 5 में 5 ही हैं तो सोच लो, बहुत बड़ा नाम है। 5 में से, and they reached out to us, and उन्होंने बोला कि हम podcast करना चाहते हैं, and the top guy directly called me, like Raj, I love your work, come over, we want to have this podcast with you. एंड मैंने बोला ठीक है सर, आपकी टीम मेरी टीम से कनेक्ट करा दो, विल वर्क ऑन इट। मेरी टीम ने उनसे पूछा कि आप जब आओगे आप क्या सिखा सकते हो। उन्होंने बोला इनसे क्या सीखोगे यार, इंस्पिरेशन है ये तो। मतलब ओके इंस्पिरेशन है, बट आपकी जर्नी के बारे में कैन यू टेल अस समथिंग जो शायद आज तक किसी को नहीं पता है। दे वर लाइक नहीं 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 ये सब तो नहीं पता, जो होगा फ्री फ्लो में हो जाएगा। मैं लाइक ओके। लाइक फ्री फ्लो में क्या होगा? तो उन्होंने बोला कि हम एक टेलीप्रॉम्प्टर लगाएंगे सामने, आप हमें पहले से क्वेश्चंस दे दो, उन क्वेश्चंस के वो आंसर्स रटे हुए होंगे, और बीच में जब कट बोलना होगा हम कट कर देंगे, क्योंकि उनको अपना टाइम चाहिए, वो एग्जैक्ट वैसे ही बोल सकते हैं, तो शेयर वैल्यू अप एंड डाउन हो सकती है। एंड वी सेड नो। मुझे पता था कि वो मैं पॉडकास्ट डालता तो मिनिमम 10 मिलियन व्यूज़ थे, एंड मेरा बहुत नाम होता था कि भाई तू किसको लेके आ गया। बट वी सेड नो बिकॉज वी डोंट वॉन्ट एनी वन टू कम ऑन आवर पॉडकास्ट एंड टॉक समथिंग जो उनकी PR ने उनको सिखा दिया है, या वो ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं पता है जो उनके बारे में हमें नहीं पता है, या वो कुछ मेरी ऑडियंस को सिखा ही नहीं पाए।
So I think we respect that a lot, and that's why our podcast choosing selection is very, very hard. Hello, sir. Here. Okay. Hi. I'm Nidhi from 4Plus. And first of all, great to have you here. Thank you. And my question is, being a content creator, you constantly have to choose a niche for your audience. And now being in a media agency, we also face this issue. Like we have lab-grown diamonds. We have 3 different clients with lab-grown diamonds. And how do we choose same niche for 3 different clients with the same industry? Wow. Wow. I would never work with 3 different clients together doing the same niche. Let me think. Interesting question. You know, the way to do it, probably what I do is, the way I choose niche is, I think my life is my niche. So whatever I am going through, I ask myself 5 questions, and based on that I create content. And this is what every business owner should also do. So you should ask these 5 questions to all 3 clients, and उनके तीनों के अलग-अलग answers होंगे, और उनकी वो niche बना देना. Okay, so let me tell you. So first is, when I started creating content, this is what I asked. It's like, who am I? मैं एक 20-year-old लड़का हूँ. कहाँ से आता हूँ? Tier 2 city से. क्या मुझे करना है? Like what are my dreams? मुझे एक बड़ा entrepreneur बनना है. मेरा सबसे बड़ा challenge क्या है? कि मैं बॉम्बे जाऊँगा तो मैं किसी को नहीं जानता, so probably networking is my challenge. And then fifth is कि मुझे अभी at this point क्या रोक रही है to become that big? Like what is my pain point right now? So my pain point was कि मेरे में कोई skill नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जो मैं सीख सकता हूँ जिसकी वजह से मुझे पता हो कि बड़ा business बनता कैसे. So all my content was for कि एक 20 साल का इंसान छोटे शहर से बड़े शहर में जाके एक स्टार्टअप जिसको बनाना है, वो कैसे नई चीज़ें सीख सकता है जिसकी वजह से उसका स्टार्टअप बड़ा हो. That became my niche. And that was exactly why most of the people started following me in the beginning, क्योंकि मैं यही करता था, पॉडकास्ट बुला बुला के लोगों से ये चीज़ें पूछता था. So that exactly what you can do. These 5 questions you can write down, and for clients this will be like कि what do we sell, कौन हमारा कस्टमर है, उस कस्टमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम ज़्यादा कस्टमर्स तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, और हम में ऐसा क्या है, हम कहाँ से आते हैं जिसकी वजह से लोग हमें खरीदने चाहिए. 5 अलग अलग चीज़ें बताएंगे. अगर 5 क्वेश्चन सेम है तीनों के, आई थिंक फिर शायद अलग अलग कर देना चाहिए क्लाइंट. Because I wouldn't work with someone who has like exact same, I won't be able to actually give them exact value. So अगर ये answers अलग है तो then you can work. That's how I create my niche. Hello. Yeah, we all know, I mean, I'm sure everyone has questions. And that is why we have kept a specific content creators meet also, which will happen in the exhibition area. Because obviously, any day cannot end without a concert, right? So we have Nova in the house. So we have to stop, probably last few questions, we'll take it. And then we'll have Raj and the entire content creator team in the exhibition area for the meet and greet. But just last 2 questions, one from Anuj and one from Sharad's side. Yeah. So we can have 2 questions. Cool. Hello. Hi, Raj. Hi. Good evening. So, when I was thinking to name my brand, name my company, then I was thinking that it has to be very catchy, it has to be very unique, which is why I named it Event Pitara. Now I'm also known as Pitara Girl. Nice. So, what was the thought behind the name Figuring Out? Because I was figuring out in life. What exactly? I told you, health, wealth, relationships. Really? Because just because you were figuring out, you had kept it Exactly. That was the reason. I was like, मैं life में figure out कर रहा हूँ, और मेरे से कितने होंगे जिनको figure out करना है? Figuring out. What are we doing? Figuring out. Right? And I say this in my organization, there's a line. The line is, we want to become world number 1. Are we the most talented? No. Do we know all the things that we can, that requires to become world number 1? No. Do we have the right team to be there? No. Do we have the right language to be there? No. Maybe, maybe not, we don't know. But till that happens, we're going to keep figuring out. So that is why we kept figuring out. Great thought, yeah. I usually, मेरा कोई भी, अगर तुम किसी भी स्टार्टअप का या कोई भी ब्रांड देखोगे, ज़्यादा दिमाग लगा में नाम नहीं था. मुझे लगता है नाम से कुछ नहीं होता, काम से होता है. काम अच्छा होता, नाम अपने आप बन जाता है. So मैं दिमाग लगाता नाम पे. All my names, like House of X
was just like कि X मतलब infinity, तो infinity का house है, हम तुम्हें infinite potential दे देंगे. कुछ जो उस टाइम पे आ गया कर दिया, like that is how we keep it. Blanco is a perfume name. वो जो किंग है मेरा पार्टनर है, उसका गाना था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, उस टाइम सुन रहा था, भाई ये रख ले, वो रख लेते हैं, ठीक है. So we are very very random with keeping names because I feel name is मतलब मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता. एंड द फर्स्ट इज दिस, सेकंड मैं बहुत देखता हूँ कि उसका डोमेन नेम मिल जाना चाहिए. दैट इज एन इंस्टाग्राम आईडी मिल जाना चाहिए. सो दीज आर द टू थिंग्स आई सी. आई डोंट थिंक ऑफ नेम्स. Hello. Hi, here, Raj here. Hi. This is Ashna. Firstly, welcome to Surat. I really hope you enjoy your stay here. So, I'm a budding new age entrepreneur, like a lot of people present here. I have my own brand in the home decor niche. And I want to ask you point blank, कि 0 to 1 जाने का फंडा क्या है? What is that one thing that every entrepreneur should focus on, should not miss out on at all in the budding stage, in the founding stage, कि वो process थोड़ा सा fast हो जाए, or something that you have faced, a failure that you have realized कि यार ये mistake है, इसको avoid करो कुछ भी करके. So point blank एकदम. First advice is follow Raj Shamani. No, I'll tell you, 0 to 1, I think this is very cliche, but everybody knows it, and then I'll tell you a hack to it. Okay? The cliche is start creating content. Everyone in 0 to 1 stage, just create content, create so much content that you can. I think the most important function of your business is getting the right customers in the initial stage. And अगर तुम product based business नहीं हो तो तुम्हें first product, I'm assuming कि product बन गया है, okay? तो product बनने के बाद the first and the most important thing is कि तुम्हें customers चाहिए, and that customers can come from internet very easily. So 0 to 1, everyone who's here, create content. And don't tell me कि मैं B2B में हूँ, मैं B2C में हूँ, मैं सॉफ्टवेयर बेचता हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन बेचता हूँ, सब में सबका स्कोप है और सब ने पैसे कमाए कंटेंट बना के. कोई भी नीश ले लो. अब फ्रेंड वो स्विमिंग पूल बनाता है, स्विमिंग पूल बैंगलोर में, और उसने 60 करोड़ का बिजनेस बनाया. सिर्फ स्विमिंग पूल दिखाता है महंगे करोगे, और सारे घरों में इंडिया में स्विमिंग पूल ही लगा रहा है. लाइक आई कुड हैव नेवर इमेजिन कि स्विमिंग पूल वाले, बट व्हेन ही टॉक्स, सो व्हाट हैपेंस, मे बी जो एक रियल एस्टेट बिल्डर है, उसने पहले एक बिल्डिंग बनाई होगी जिधर उसको वाटर प्रूफिंग की प्रॉब्लम आई होगी, उसने उसकी रील देखी जहाँ पे वाटर प्रूफिंग की अच्छी हद कर उससे कनेक्ट हुआ, उसने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि मेरी 4 बिल्डिंग में तू बना देना. लाइक एनीथिंग कैन हैपन. कॉन्टेंट इज दैट पावरफुल. सो 0 to 1, content 100%. Now the hack to create content and go really viral is, I'll give you 2. First is make any content that is savable and shareable. जो दूसरे लोगों को शेयर करें. कोई कंटेंट लाइक्स और कमेंट्स के लिए मत बनाओ. कंटेंट सिर्फ इसलिए बनाओ कि दूसरे को भेजेगा क्यों. किसी भी नीश में वो ऐसे चीज़ बनाओ, लाइक you should treat, I'll tell you the biggest hack, you should think that your audience should send this to other people by actually insulting them and be like, अबे तू कितना dumb है, तेरे को ये नहीं पता, right? And this is what smart people do. We all have that smart uncle on WhatsApp group, जो रोज सुबह बेचते हैं बेटा बादाम खाने से ही होता है, right? और वो इसलिए बेचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो बहुत स्मार्ट हैं, बट क्योंकि किसी ने कंटेंट बनाया उनके लिए जो उन्हें स्मार्ट लगा रहा है, इसलिए उनका कंटेंट शेयर हो रहा है. दिस इज व्हाट एवरीबडी शुड थिंक अबाउट. मेरे कस्टमर को मैं कैसे स्मार्ट फील कराऊं ताकि वो दूसरे लोगों को मेरा कंटेंट शेयर करे. एंड दैट इज द बिगेस्ट हैक. यू विल गो 0 to 1, 0 to 100 के very quickly. Just make sure that you're making sure that your customer is feeling smart. बहुत लोग करते हैं कि स्टार्टिंग में अपने हैक्स नहीं बताते, अपनी चीज़ें नहीं बताते, स्मार्ट चीज़ें नहीं बताते. उनको लगता है कि यार मेरे कॉम्पिटिटर देख लेंगे, मेरे कस्टमर को ये पता चल गया तो फिर थोड़ी वो मेरे पास आएगा, मैं कैसे अपना सीक्रेट सॉस बता दूँ तो भी आएगा कस्टमर. सारे कस्टमर्स लेजी हैं, और जो लेजी नहीं है वो तुम्हें कस्टमर चाहिए नहीं. ट्रस्ट मी. So all customers are lazy. They'll still come to you. They'll still ask you to do the stuff even after knowing all the hacks. So you should just make them feel that they're smart and tell them everything that you have. That's it. Okay, last question we'll take from this side. Sorry. Last question. Can we give it this thing? Oh, 3 people stood up. अब तुम दोनों रॉक पेपर सीधा कर लो यार.
You guys. I'll sign. Choose. We can do one each. Fine. Like let's just do two. Go. Okay. Last two. I'll try to keep answers short. By the time you can come, I'll sign. Hi Raj. So I'm CA Gitika Bajaj and I run an outsourcing firm. And the minute you hear that it's an outsourcing firm or KPO, you feel like, oh, it's going to be boring. And I love speaking, so I started making content related to that. But now I think that, okay, CAs, generally don't make much content like related to outsourcing. So I feel like I could start a podcast. And but the bottleneck that I'm facing is that how do I reach out, So how did you first get your first podcast host? Okay. So everyone who wants to do a podcast or maybe invite people in their events, can you guys sit? I'll answer. I will be here. मैं सब sign करूँगा. Don't worry. So जिसको भी start करना है podcast. How many people want to build podcast? By the way, I just want to see. Wow. जस्सी नोट बना ले, सब कंप्यूटर बनने वाले हैं. अब मैं वो गलत टिप देनी पड़ेगी. I'm kidding. You can take my whole blueprint, you can take my people, you can take my whole company and try to build your podcast and you will be able to build it. Don't worry. I'm very open. Very open like that. So, my first guest was my, I think, 170th or 180th email that somebody said yes. So, I'll tell you, okay, not a lot of people know this. जब मैंने स्टार्ट किया था पॉडकास्ट, मैंने ना सब लोगों को भेजा, एंटरप्रेन्योर्स से लेके फेमस कंटेंट क्रिएटर्स से लेके सबको. सो किसी ने रिप्लाई नहीं किया. सो आई टेल यू द नंबर ऑफ पीपल हु आर टुडे माय फ्रेंड्स, वी आर लाइक वेरी क्लोज बडीज एंड वी हैंग आउट टुगेदर, एंड उन्होंने किसी ने रिप्लाई नहीं किया था. 6 महीने फॉलोअप तक उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया. बैक टू बैक मैंने 10-15 ईमेल भेजे. पारुल गुलाटी. पारुल ended up becoming one of my first guests in the initial. मतलब उसको बहुत follow up किया था उसने, फिर हाँ बोल दिया था पारुल ने. I think 10th or 11th podcast was with Parul. So she was there. रणवीर अलाबादिया didn't reply for आज तक reply नहीं किया उसने इस email का. WhatsApp पे reply कर देगा लेकिन email पे नहीं करेगा. ठीक है. Then Dr. Ritesh Malik, for the longest time he didn't reply. Then Kunal Shah didn't reply. Kamath Brothers didn't reply. Nikhil is one of my closest big brother type now. Like he's a person who I go to advice for now. He didn't reply to me at that time. Then Masoom Minawala, no reply. So all these people, like all you hear names today, probably they have good friends or someone who are collaborators or we belong to the same industry. None of them replied. None of them. मेरा first podcast था with Gaurav Raturi. I still remember his name. वो ना दिल्ली में वॉल्स पेंट करता था और वो वॉल्स पेंट कर करके उसने 70-80 वॉल पेंट करी थी और वॉल पेंट आर्टिस्ट बनना चाहता था और उसको कमर्शलाइज करना चाहता था. उसका कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं था, बट ही सेड यस. एंड मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था कि यार वॉल पेंट करके कैसे बिजनेस बनता है, क्योंकि मैं उस टाइम पे मेरे बिजनेस के लिए वॉल पेंटिंग बहुत कराता था. सो दैट वाज माय फर्स्ट गेस्ट. माय सेकंड गेस्ट वाज अ पोएट, याया बूटवाला. वो मेरे शहर आया था एक पोम उसके स्टैंड अप या उसके इवेंट के लिए, उसके शो के लिए. वहाँ पर मैंने उसको ऑफ गार्ड चेस कर लिया, उसके मैनेजर से बात करी, मैंने प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एंड देन दैट्स हाउ वी वर एबल टू डू इट. मेरा थर्ड था पॉडकास्ट जो मैंने डिलीट कर दिया, अभी आज तक तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं. वो श्वेताब गांगवार, एक बहुत ही राउडी अल्फा मेल टाइप कंटेंट बनाता था. वो श्वेताब मैन सूत्रा करके उसका नाम था चैनल का, उसके साथ बनाया था. वो इतना अब्यूजिव कंटेंट था, इतना ज़्यादा बढ़िया था, बट मैं उस टाइम पे यंग था तो मैंने वो भी डाल दिया था कि यार कैसे भी व्यूज़ आ जाएं बस. And then I deleted it because that was not vibing with my authority. So I have done all of this. Now, what I've learned after reaching out to so many people, that is more important. Even today, a lot of people don't reply, by the way. Like, I've been chasing Gautam Adani since ages. Nahi reply karta, right? They don't reply today, but we keep chasing. साल भर से कर रहे हैं. One day he'll come. We keep chasing Ambanis. They don't reply. We're trying to reach out to Ratan Tata. They are not replying. I reached out to Barack Obama. Nahi reply किया उसने.
So you have to keep chasing that. You just have to keep doing it, right? Yeah. You just have to keep doing it, right? In fact, recently, so I reached out to Sundar Pichai, okay, Google CEO, and Varun, one of my very close friends, he did a podcast with him. Right? तो मैंने तो अगला email डाला यार आपने वरुण के साथ कर लिया मेरे साथ भी कर लो. So I keep doing it even today, every day, and a lot of people don't reply. One type of email which has gotten me maximum replies is when I start my email with what I'm going to do to them. Most of the emails where I have received or when I have sent, people don't reply when I say, hey, I am Raj Chamani, I run this podcast and I can do this. It'll be my honor if you accept my humble request to be on my podcast, right? That never works. To me, it has never worked. I throw up, एकदम मैं जाके chase करता हूँ किसी guest को. For example, his first podcast or first interview after his whole fiasco of Shark Tank was with us. He didn't reply to Forbes, he didn't reply to CNN, he didn't reply to Economic Times, he didn't reply to Money Control, but he replied to us because उन सब ने यही भेजा था उसको कि प्लीज़ यार हमें opportunity दे दो आपसे बात करेंगे ये करेंगे. He sensed that कि सबको controversy चाहिए. He sensed that okay, he's gonna help me. The moment you can make your guests feel like I'm gonna help you, I'm doing a favor by getting you on, they're gonna, no matter how big or small you are, they'll come on your guy. This is what I've learned. So, exactly this email, your way of speaking is getting overshadowed. Let me help you change that. Hi Raj, I have a question. You shared about 3 of your success stories. Can you share about one of your failure startups and what did you do after that? Lovely. I'll tell you the most common one which I think everybody did. मैंने भी sanitizer बनाया. हाँ मैंने sanitizer बनाया और sanitizer बेचा भी और वो बहुत बड़ा failure था, flop हुआ. मैंने sanitizer disinfectant sprays बनाया उसमें बहुत पैसे कमा लिए. But उससे पहले मैंने sanitizer बनाया था तो वहाँ पे fail हुआ. The thing was सब लोग बना रहे थे तो मैंने बनाया so I followed a trend. उसमें ना मेरी purchase capacity थी ना selling capacity थी ना मुझे formulation आता था. वहाँ पे I failed. मुझे खुद को stand out करते नहीं आता. मेरे sanitizer में कुछ unique नहीं था. There I failed. उसके बाद इतने लोग market में आ गए थे और मेरे पास ना pharmaceutical companies का distribution था तो मैं distribution भी ना बना पाया. There I failed. And then ना मैं content बना पाया unique तरीके से उसको बेचने के लिए. There I failed. And then गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी कि 50 रुपये से ऊपर नहीं बेच सकते तो मैं उसको एस्पिरेशनल भी नहीं बना पाया. देयर आई फेल्ड अगेन. सो फेलियर वाज बिकॉज आई ट्राइड टू चेस समथिंग वेयर आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट एंड दैट्स वेयर आई फेल. एंड दैट्स आई थिंक द कॉमन स्टोरी विद एवरीवन इन एवरी फेलियर. दैट आई वुड से वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर्स दैट आई डिड. Amazing. Hi Raj. Lovely. So Lovely. on the behalf of the Ivy Grove team and 21 by 72, so we loved having you, absolutely loved. I think we all can vouch for that. Let's give him a big round of applause. Thank you. Thank you. We just want to know your experience in Surat. I hope you loved being here as much as we loved having you. It was lovely. मैं सूरत शायद 4th या 5th टाइम आ रहा हूँ. मैं पहले इधर बिजनेस करता था सूरत से. केमिकल्स खरीदने के लिए मैं ट्रेन से आता था सूरत और वापस चले आता था. सुबह आता था और रात को वापस चले आता था. दैट वाज माय सूरत एक्सपीरियंस. यहाँ पे बहुत सारी डिटर्जेंट केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं जिसके साथ जिधर मैं आता था पापा के साथ केमिकल खरीदने के लिए. एंड उसके बाद मैं अब आ रहा हूँ वेयर नाउ आई फील लाइक कि यार मुझे मतलब लोग रिसीव करने आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है. सो इट्स अ वेरी सरियल फीलिंग दैट द सिटी वेयर आई स्टार्टेड डूइंग ट्रेड फ्रॉम, the city where I was really underconfident, is a city which is welcoming me. So I loved it. Thank you so much for giving me this honor. And I loved you guys' hospitality. You guys are really, really kind. And let me tell you one thing, guys. This guy, both of them, ये बताए जब first time room में आते ना, how do people enter in the room? I'll tell you. Hi Raj, I'm Rachit, I'm Prateek, right? These guys entered like this. Okay? Yo Raj, yaar, so good to see you, man. It was so good. Dude, we are so excited to hear. I was like,
एंड मैं सुबह 5 बजे से उठा हुआ हूँ, मैं कल रात को 2 घंटे सोया हूँ, अब मैं उठ के आया मेरे को, and to act there, I was like, yeah man, super excited, let's go do this. So, the kind of energy these guys give is so contagious. Like, thank you so much for doing this. Thank you guys. It was pleasure being here. Thank you so much. Raj, one thing I would add on to this, we all felt like we are watching or listening to actually figuring out the Raj Shimani podcast live here because it was so candid, it was so raw and so honest. And thank you so much with the patience you answered each and every question to your best. Thank you so much Thank for you. having me here, guys. Thank you. And to felicitate you, please, we would like to welcome all the IVY Growth Associates founders and the title sponsor, Team Ayani Lab Grown Diamonds. So anybody from Team Ayani and Steam House, we welcome Jheel Bhudia and Shivangi Agarwal from Steam House. So please come up on the stage and help us felicitate Raj Shimani. Also, Raj, we have a very special gift for you made by Manthan, who is from Fivesome Games. He's a specially challenged and he has made a personalized board game for you. And I would request Team IVY to present this board game. Customize a board game for you. His name is Manthan. He's physically not present here, but Team IVY would like to present this. 21 पर हम छा जाएंगे, दुनिया के नक्शे पर हम 21 पर हम छा जाएंगे.